Hello, friends, a warm welcome. And the first 50 questions we have taken in the previous discussion, and now we are moving forward with the next 50 questions. And the goal again is not to bring fault with the questions and also not to prompt with the right answers. The goal is to understand how we are deriving our own answers and any kind of bluff or any kind of fluke, or is there any kind of shortcut? That's what we are experimenting with. We have done such kind of experimentation from last more than 10 years, and we have found there is no shortcut. If you have anyone, please let me know so that I can also learn and I can implement. Going with the question number 51, Rowlatt Satyagraha, Home Rule League and All India Muslim League helped to raise awareness during the Satyagraha. Mansi. So it should be true. Khadi was used as symbol to transform politics from urban to rural. Mansi. So false होना चाहिए. From urban to rural. Okay. During the Rowlatt Satyagraha protest, Gandhi renounced his knighthood. True, sir. Pravesh. सिर्फ पहला सही है बाकी दो गलत. लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है प्रवेश? रविंद्रनाथ टैगोर, नॉट गांधी. नहीं सर, लास्ट वाले में जालियांवाला बाग के बाद हुआ था. रॉलेट सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था. रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जलियांवाला बाग के समय में नाइटहुड रिनाउंस किया था. Sir, B answer है. Right, 1 and 2 are correct and third is wrong. Second is we can say correct because the Gandhi अर्बन was टू रूरल है ना सर, खादी यूज हो सकता है. सिंपल ऑफ ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल की जगह रूरल टू अर्बन भी हो सकता था, बिकॉज गांधीयन पॉलिटिक्स में अगर हम देखेंगे जो मूवमेंट्स हैं दे आर गोइंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एक्सेप्ट क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट अर्बन से रूरल था. तो अब ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. खादी लेकिन सिंबल था, और ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल अगर आप इंग्लिश की तरह देखते हो कि फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, देन स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. इट इज नॉट अ ट्रेजेक्टरी, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेज. Portuguese Viceroy Francisco de Almeida was the first European to ban sati. Kaushik. ट्रू हो सकता है सर. True हो ये सकता है. गोवा में किए होंगे कार्टेज. Caesar ने भी. प्रवेश. Carthage pass. करेक्ट. Portuguese sailors introduced potatoes in India during the early 17th century. Mansi. True, sir. All the statements are true. Move. The first one is wrong. इसमें लिखा है नेम करेक्ट नहीं है. अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ऐसा करके. Alfonso de Albuquerque is the real founder or viceroy of India. लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो एग्जाम ऐसा नहीं करेगा. एग्जाम करेक्ट नेम ही देगा, वो इसको नाम में वो नहीं करेगा, वो बड़े कॉन्सेप्ट में करेगा. फ्रांसिस्को डे अल्मेडा वाज द फर्स्ट वाइसरॉय, दैट इज ट्रू. लेकिन फर्स्ट वाइसरॉय टू बैन सती, दैट इज आई एम नॉट सेइंग इनकॉन्सिक्वेंशियल, लेकिन बस यूरोपियन लिखा हुआ है सर. intention was correct, so that is why I did not intervene. Otherwise Alfonso de Albuquerque correct हो सकता है. Lord Curzon establishment of ASI. Pravesh. करेक्ट सर. ASI was established 1861. It is not correct. It is blatantly wrong. It should be Alexander Cunningham's time, 1861, Lord Canning's time, and after that there will be Lord Elgin. Formation of All India Muslim League. Pravesh. सर ये करेक्ट. लॉर्ड मिंटो में जाएगा, वो मिंटो के पास उनका 606. Establishment of the first agriculture research institute at Pusa, Bihar. प्रवेश. सर ये तो करेक्ट होगा. ये तो करेक्ट होगा नहीं, ये करेक्ट है, because he went on to get the funds for it and he went on to establish it. 1934 से 36 के बीच में वहां पर चेंजेस आते हैं, बिकॉज अर्थक्वेक आएगा. अर्थक्वेक के आने के बाद वो पूसा, बिहार का जो जगह पूसा है उससे दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका नाम पूसा ही रखा जाएगा. Sir, here the answer shows C. 1 and 3 only are correct. Second is वन कैसे? वन इज नॉट करेक्ट सर बिकॉज वर्ड गलत लिखा है सर. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं होगा, लेकिन उसका पावर ज्यादा है. कुछ किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे से इंडिया से. जॉन मार्शल, ही इज गोइंग टू ब्रिंग द एक्ट, ही इज गोइंग टू ब्रिंग द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स. जो एक्ट अभी हम बात करते हैं वो मॉन्यूमेंट का एक्ट आएगा. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ डिपार्टमेंट रिसरेक्शन उसका हो सकता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट.
तो स्टेटमेंट का फॉर्मेशन रॉन्ग है. थैंक यू प्रेरणा. Question number 54. Annexation policy of the East India Company. The subsidiary alliance system was introduced by Lord Dalhousie. Mansi. True, sir. Lord Weatherly introduced doctrine of lapse. Pravesh. Correct, sir. Awadh was annexed in 1856 on account of misconduct in governance. Mansi. No, sir. It shouldn't be on the basis of misconduct in governance. It should be Sir. on the basis of what? Yes, Ashik. Correct. सर पहला Sir, वाला सब्सिडी अलायंस annexation was a tripartite struggle से related, I think. ऐसा नहीं है. कोई ट्राइपार्टाइट सर पहला वाला जो सब्सिडी अलायंस है लॉर्ड वेलेस्ली का एंड लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अवध वो नेक्स्ट अंडर 1856 ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट इन गवर्नेंस. थर्ड स्टेटमेंट सही है बस ओनली 3 सी. इसीलिए ओनली 3 होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस पर अप्लाई नहीं हो सकता था अवध के ऊपर, एंड अवध हैड बीन सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल फ्रॉम द बिगनिंग एंड इट वाज एक्टिंग एज अ सब्सिडरी स्टेट आल्सो, इसीलिए उनको कोई बहाना चाहिए था. तो मिसकंडक्ट इन गवर्नेंस वाज ए बहाना. इसीलिए जो लास्ट रूलर थे उनको जो वहाँ के एम्परर थे उनको कलकत्ता एग्जाइल दे दिया गया था, जिनकी वाइफ जो है आपकी हजरत महल, बेगम हजरत महल, शी रिवोल्टेड अगेंस्ट, और उनका बेटा बिदरिस कद्र उसको जो है नया रूलर बना दिया गया था. मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका. वाजिद अली शाह. ओके, नवाब वजीर वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता एग्जाइल कर दिया था. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि वाजिद अली शाह वाज अ वेरी सेकुलर एंड वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी, लेकिन वीक तो थे ही, वो इतना स्ट्रैटेजिक रूल नहीं था. दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आएगा, सेकंड फर्स्ट आएगा. Doctrine of, though I'm very surprised why a person like Pravesh had been marking it wrong. It is a horrible blunder. It should not happen. Question number 55. All India Trade Union Congress, Gopal Krishna Gokhale. Ashik. फॉल्स सर. False. All India Trade Union Congress, AITUC, इनके साथ लाल लाजपत राय जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल जुड़े हुए हैं, वाडिया जुड़े हुए हैं. गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. और इनके 1905 के आसपास है सर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्वदेशी मूवमेंट के समय. 1912-13 तक ही गोपाल कृष्ण गोखले एक्टिव हैं. उसके बाद तो वो नहीं रहेंगे. गांधी मेंटर हैं, गांधी जी के गुरु हैं, और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं. मॉडरेट लीडर हैं. ऑल इंडिया टेपरिस्ट क्लासेस कांग्रेस, B.R. अम्बेडकर. प्रवेश. करेक्ट है सर. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, श्री नारायण गुरु. मानसी. False होना चाहिए, sir. होना चाहिए फॉल्स. थर्ड वाला पूछ रहा हूं मैं. Sir, personality कोई और होनी चाहिए. कौन होनी चाहिए? कोई और. Sir, प्रवेश. recall, sorry, but थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और वहां पर होना चाहिए पेरियार, जो है E.V. रामास्वामी नायकर. श्री नारायण गुरु ने आपका अराविपुरम मूवमेंट है, जिसको हम SNDP योगम भी कहते हैं, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, केरला में. वन कास्ट वन नेशन बोल. हमारा नेशन, कास्ट वन नेशन. हाँ सर नहीं कहा था. वन वन नेशन वन कास्ट वन रिलीजन, कास्ट रिलीजन था. वन नेशन वन रिलीजन. चलिए नेक्स्ट. With reference to administrative services adopted by Cornwallis, consider the following statements. He encouraged the Europeanization of Indian services. Mansi, 56 का first statement. true, sir. He separated executive and judicial duties at the district level. Ashik. ट्रू सर. He discouraged private trade. That is, the salaries of the company collectors were increased. Parvesh. करेक्ट. All the statements are correct. And this is showcases the kind of structure the British were going to create. Mahalwari Holt Mackenzie. Mansi. False, sir. Permanent settlement Warren Hastings. Pravesh. गलत. कोर्नवालिस. Rayatwari Alexander Reed. करेक्ट. फर्स्ट करेक्ट, थर्ड. फर्स्ट करेक्ट, थर्ड करेक्ट. Holt Mackenzie होंगे जुड़े हुए. Holt Mackenzie was a very great officer, and he was a kind of a जिसे कहते हैं developmental administrator.
वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, सेकंड में आएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड है सर मुनरो आएंगे, मुनरो एंड हेजेंट्रेट। रीड आएंगे। राजा राममोहन रॉय ही स्टार्टेड पर्शियन अखबार मिरातुल अखबार मानसी। True, sir. Calcutta Unitarian Association was founded jointly by him and the William Adams. Ashik. सही नहीं होगा सर, कलकत्ता नहीं होना यूनिटेरियन। चाहिए। सेन केशव केसी सेन होना चाहिए, हाँ सर, केशव चंद्र हाँ सेन। यूनिटेरियन एसोसिएशन नहीं सुने थे अब तक में, नहीं पढ़े, नहीं होगा। He believed in the worship of one supreme God and opposed polytheism. मानसी। Sir, false होना चाहिए। Question है। ट्रू होगा सर, ब्रह्मो। हाँ बोलो बोलो प्रेरणा। फिर ऑला करेक्ट। कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन के साथ वैसे केशव चंद्र सेन, मे बी मिस्टेकन, बट वो जुड़े हुए थे शायद, दैट्स व्हाट माय मेमोरी सेज, बट देन दैट्स फाइन, प्लीज नोट दिस सर पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ सर फाउंडेड, वो उन्होंने जुड़े हुए थे बस किसी से, फाउंडेड उन्होंने किया। क्या बोलो प्रेरणा। सर लिखा हुआ है जॉइंटली फाउंडेड बाय विलियम एडम एंड राजा राममोहन। चलो ठीक है। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, H.T. Prinsep was the president of the General Committee of Public Instruction. प्रवेश। True. ये फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये अगर हाँ सर, कमेटी के एच टी प्रेसिडेंट प्रिंसिप तो नहीं हो सकते सर, वो मैकॉले, इज रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल थिंग सर, तो जनरल कमेटी। ये पॉसिबल है कि उनसे पहले हो सकता है 1813 में, जो ये उठा के जहां से दिया है इन्होंने, एक किताब में से इन्होंने पैरा बना के दे दिया, तो वी कांट से, बट नहीं होना चाहिए। द ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज प्रोवाइडेड बाय प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया बाय द चार्टर ऑफ 1813 वाज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द कमिटी। प्रवेश। Correct है सर। It recommended grant in aid to encourage private efforts in the field of education. Mansi। So private efforts in the field of education पे डाउट है मेरे को, false होना चाहिए। क्यों Sir, फॉल्स होना चाहिए? I'll go with 2 and 3. 1 लाख रुपए भी दे रहा है, इनकरेज तो करना प्राइवेट सर एफर्ट नहीं private efforts तो देगी ना सरकार, पैसा साला एजुकेशन में देगी कि अपने यूरोप भेजेगी, कहाँ चाहती है सरकार? सर फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। फर्स्ट में मैकॉले लिखा है एंड थर्ड वाले में इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। जो वुड्स डिस्पैच है ना वो आना चाहिए यहाँ पे, तब करेक्ट होता है थर्ड वाला। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रिकमेंड नहीं करती है ऐसा कुछ भी। तो बेसिकली अगर आप इसको 1813 एक्ट के हिसाब से देखोगे तो रॉन्ग हो गया, और अगर आप इसको जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक हाँ इंस्ट्रक्शन के सर, हिसाब से तो हो गया। ये क्वेश्चन की फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है, अदरवाइज ग्रांट इन एड टू इनकरेज प्राइवेट एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये वुड डिस्पैच ने तो बोला ही बोला था, उसी एंगल से मैंने आपको बोला। तो कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात तो सर मतलब 13 के अंदर की बात कर रही है जो लिखा हुआ नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो मानसी, यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ टाइम जी पीरियड सर। हो सकता है पीछे, लेकिन ब्रिटिश जरूर चाहेंगे कि प्राइवेट एफर्ट हो, बाद में तो करा ही करा है। हिंदू लेडीज सोशल एंड लिटरेरी क्लब, रमाबाई रानडे। प्रवेश। Possible sir. भारत श्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी। ये भी हो सकता है सर। आर्य महिला समाज। सर ये भी हो बोलिए। सकता है। ये भी हो सकता है, जिंदगी में सर सब कुछ हो सकता है चाहे तो। प्रेरणा। सर मैं हाँ बोल। सर पहले वाला नहीं होगा सर, क्योंकि रमाबाई हम्म, रानडे हिंदू लेडीज सोशल लिटरेरी क्लब नहीं कर सकती, वो मेरे हम्म, अकॉर्डिंग। अब आता है सर ओके। सेकंड में, बट भी नहीं होगा। सेकंड में आर्य महिला समाज सर, तो सरोजिनी नायडू। ऐसा आई नाम नहीं थिंक लेके आई। हम तो ठीक चेंज, नन ऑफ द पेयर होगा, ए होगा इसका सर। है। सर सी इज द आंसर। थर्ड वाला रॉन्ग है, सरोजिनी नायडू की जगह यहाँ पे पंडिता रामाबाई, बाकी दोनों सही हो पर। मतलब हिंदू लेडीज। ओके, आर्य महिला समाज, पंडिता रमाबाई। पाइका रेबेलियन, चलिए आगे। गुड एफर्ट्स प्रवेश। पाइका रेबेलियन।
The Paikas were the peasant militias of Gajapati rulers of Odisha. Mansi. तो peasant militia so true होना चाहिए. होना चाहिए. Bakshi Jagabandhu Vidyadhar led the Paika rebellion of 1817. True, sir. True. British policies of exploitation, salt policy, and the new military politics system were the causes of Paika rebellion. सर न्यू मॉनेटरी सिस्टम पे डाउट है, पहले तो हो सकते हैं रीजंस. मॉनेटरी सिस्टम भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं. न्यू मॉनेटरी मतलब ये नहीं बोला कि वहां पे आरबीआई आ गया, यहाँ पे एफबीआई आ गया, कुछ और हो गया. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप में मेंस के आंसर का ये फ्रेमवर्क है. तो इसीलिए प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी इससे स्मार्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नॉलेज के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स अ गुड एक्सरसाइज. तो इसीलिए आप मेंस के हिसाब से इसमें से पॉइंट्स अपने आप निकाल लो. और जो डॉक है, मॉडर्न इंडिया का डॉक, उसमें मेक श्योर कि इससे अपर लेवल में हम चीजें लेके आए. इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री औशिक और श्री परवेश जो है उनको फॉलो करते हुए. श्री परवेश जो है ज्यादा मेहनत दिखा रहे हैं, श्री परवेश जी और भी मेहनत करेंगे. बुद्धू भगत लड़का रेबेलियन. औशिक. सर बुद्धू अगर लड़का rebellion, सर आई थिंक गलत होगा. क्यों गलत होगा? ऐसा नहीं सर है. ताना भगत से रिलेटेड होगा सर. ऐसा कुछ नहीं. वीर सुरेंद्र साई रेबेलियन ऑफ सांबलपुर. परवेश. सर बहुत फॉल्स है फायदा, दूसरा. ये बहुत जरिए. फायदा ये है कि तिलका ऐसे माझी रामापा रेबेलियन. तिलका माझी रामापा रेबेलियन. औशिक. नहीं होगा सर, थर्ड गलत होगा. ये रामापा रेबेलियन आंध्रा गोदावरी, आंध्रा, ईस्टर्न गोदावरी. अल्लौरी. छात्रा भगत ताना भगत. मानसी. तो हो सकता है ट्रू. प्रेरणा. ओनली 2 मारेंगे इसमें, ओनली 2. ओनली थर्ड इज रॉन्ग, बाकी तीनों ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ. ने क्या कहा तो आपको? लड़का rebellion सही. गलत तो हर हाल में होना था वो सही. ये सीखने वाली बात. सर कहाँ हुआ रेबेलियन, ट्रेनर बताना एक बार. तो लड़के के लकड़ा है क्योंकि ये लड़का है का. लकड़ा ही है. हाँ लकड़ा है, लड़का नहीं है, लकड़ा है. वही तो. अरे यार. क्योंकि लकड़ा जो है वो टाइटल है यहाँ पर, मतलब ट्राइबल्स के पार्ट है, तो लड़का लिखा है यहाँ पर. सो क्वेश्चन नंबर 62 एज वी वर टॉकिंग. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वीर सुरेंद्र. अब सुवीर सुरेंद्र में वीर तो ऑब्वियसली बाद में उनको टाइटल दिया गया, लेकिन साई, ये साई रेबेलियन बड़ा बड़ा फेमस है संबलपुर का. संबलपुर यानी उड़ीसा. और बुद्धू लड़का. बुद्धू भगत वर्ड से पकड़ो, भगत वर्ड पकड़ोगे तो लड़का या लाड़का या लाकड़ा भी होना चाहिए था, क्योंकि झारखंड में ये हमें टर्म्स और नाम मिलते हैं. तो करेक्ट हो जाता है. तिलका माझी. अब माझी भी बिहार और झारखंड से ही है, जबकि रामापा आपका ईस्टर्न गोदावरी में. अल्लूरी सीताराम राजू और उनसे पहले लीडर्स रहे. जात्रा भगत ताना भगत ये अपने आप में सही हो जाते हैं. प्रेरणा, इज देयर एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओवर देयर यू कैन शेयर इमीडिएटली राइट नाउ? Yes, sir, in relation with the Rampa rebellion, it's Alluri Sitharama Raju ये एक्स्ट्रा who नहीं है, ये did तो. it. And एक्स्ट्रा का मतलब जो मैं बोल चुका हूँ उसके अलावा कुछ और है? सर तिलका माझी में संथल कम्युनिटी लिखा हुआ है. ये भी कुछ नहीं है, ये भी मैं बोल चुका हूँ. Okay, sir, I'll pay more attention. Yes. You have to. Thank you. Which of the following commodities were exported by the East India Company from Bengal in the middle of the 18th century? Mansi, cotton textiles. Say immediately true or false. नो सर फॉल्स. Huh? Why it तो will be कॉटन false? टेक्सटाइल्स, सर टेक्सटाइल्स थोड़ी किया उन्होंने, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे ना Middle वो of तो. the 18th century. Middle of the 18th century. Pravesh. टाइम पे मेरे हिसाब से रॉन्ग होना चाहिए. One is correct, first is wrong. Okay. Oil seeds.
फिर ट्रू। अच्छा, मानसी और प्रवेश बोथ आर सेइंग ऑयल सीड्स. Ashik, can you tell me sugar and silk? ये तो रहेगा सर 3 and 4. ये तो मेरे हिसाब से ऑयल सीड्स नहीं हो सकते, असंभव है. डी और होगा दूसरा सर. 80 के मिडल में आप कॉटन टेक्सटाइल जरूर एक्सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज वेरी ट्रू. बाकी तो प्रेरणा बोलेगी. Yes, sir. The answer is D. Oil seeds नहीं था. Correct. कॉटन टेक्सटाइल अगर आप 18 सेंचुरी के मिडल में ही बंद कर देंगे और रॉ मटेरियल यहाँ से भेजना शुरू कर देंगे, तो उनके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या होगा? 1750s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे जा रहा है. जब तक वो बड़ा नहीं बनेगा, जब तक यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल जाएंगी. इसीलिए मेरे हिसाब से नहीं, दिमाग के हिसाब से प्रवेश जी गर्दन सीधी रख के रिलैक्स होकर क्वेश्चन के डिमांड पर फोकस कीजिए, नहीं तो तीर लगेगा, और तीर लगेगा तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा. Which of the following provisions were made under the Government of India Act 1935? The difference between reserved subjects and the transferred subjects were dropped from the provinces. Parvesh. True, sir. Huh? True. Provinces were granted autonomy and separate legal identity. Parvesh. Correct, sir. The Governor General was made pivot of the entire constitution. Mansi. ट्रू सर। Okay. सर Yes, sir. All are correct. D. All are correct. Thank you. सर इसमें Yes, मेरा yes. सेकंड का क्वेश्चन है मेरे को कि प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया, तो उसके बाद जो जुडिशरी भी है, जैसे हमारे यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरह उन्होंने जब एक फेडरल कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की, तो आप कह सकते हैं फेडरल की वजह से उनको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल गई. पहले ऐसा नहीं था, पहले बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास. अभी जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल की बात करेंगे, उसको हम ट्रेस करेंगे. उसकी किताब ऑलरेडी करुणा के पास है. करुणा के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, उसमें से उसको निकालना है, अगर वो जाग गई हो तो. स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men. Mansi, who is the author? And you have to mark it correct. सो इट कैन बी सी हो सकता है। सावित्रीबाई फुले आप कह रहे हैं? हाँ जी। और प्रवेश क्या कह रहे हैं? बी क्विक प्रवेश, हमारे पास सालों का समय नहीं है. जी सर, उसने बता दिया ताराबाई शिंदे। अच्छा, आप कह रहे हैं ताराबाई शिंदे, ए कह रहे हैं, और मानसी सी कह रही है. करुणा? तो ताराबाई शिंदे ही होगा। ताराबाई शिंदे ही होगा करुणा के लिए भी. दिव्या? सर ए। वो भी ताराबाई शिंदे पे ही लॉक लगा रहे हैं. कौशिक? सर ए होगा सर, सी तो नहीं हो वो भी सकता, बी नहीं हो सकता. ए और डी में मैं बी नहीं. लीम. प्रेरणा? Yes, sir. A is the correct answer. is the correct answer. Thank you very much. अंबिका चक्रवर्ती, मीर अहमद, प्रीतिलता वाडेदार. अंबिका चक्रवर्ती की जगह अंबिका मजुमदार होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती हो गया. मीर अहमद, प्रीतिलता वाडेदार, इनमें से कौन से चिट्टगांव आर्मरी रेड के साथ बंगाल रीजन में जुड़े हुए थे? प्रवेश. प्रतिलता वाटेदार, हम्म अंबिका चक्रवर्ती, हम्म तो 1 and 3 आ गए। 1 and 3 है. मीर अहमद को क्यों छोड़ा आपने? तो मुझे नहीं लग रहा वो वहां पर है। क्यों नहीं लग रहा? हिंदुस्तान को जब जब ऐसा लगा है, तब तब नुकसान हुए हैं. प्रेरणा? सर डी होगा सर. All were there. D option correct. इसीलिए बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमें अपने बाइसेस को और अपनी सोच को बदलना होगा. लगना चाहिए था, यही मैंने आपको पहले भी कहा था. विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजी